मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपने आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन और पोजीशन आइसोमर्स खत्म किया था। चेन आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट कार्बन स्केलेटन डिफरेंट। इन द पेरेंट चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट। हमने बनाए थे ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स, पेंटेन 3 एंड हेक्सेन है 5 आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में कार्बन skeleton same but position of functional group different. थर्ड आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट किया था functional group isomerism, and one example we had done, that is alcohol and ether shows functional group isomerism. Second example we are doing in functional group isomerism, that is aldehyde and ketones also shows functional group isomerism. So in functional group isomerism, aldehyde and ketone. Second example, aldehyde has formula CHO and ketone has formula CO. Structural formula of ketone is CO. In one compound we have aldehyde, in another compound we have ketones, and they show functional group isomerism, which formula CnH2nO. अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसमें एक एल्डिहाइड बनेगा और एक कीटोन। फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव C3H6O. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड गिवन, and they tell us to write the functional group isomer of this molecular formula. First we have to compare this formula with CnH2nO. कार्बन 3 तो हाइड्रोजन है 6, है डबल, मतलब इसमें एक एल्डिहाइड बनेगा और एक कीटोन। कैसे लिखेंगे? 3 कार्बन के लिए एल्डिहाइड CH3 CH2 CHO, प्रोपेनॉल, एंड 3 कार्बन कीटोन विल बी फंक्शनल ग्रुप कीटोन हमेशा मिडिल कार्बन पे आता है, दिस वे 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसका नाम एसीटोन, कॉमन नेम क्या होता है? एसीटोन, और आईयूपीएसी नेम क्या होता है? प्रोपेनॉल। सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल. In one compound we have functional group aldehyde, and in another compound we have functional group ketone. So in pair only, aldehyde and ketone always show functional group isomerism. So what are functional group isomerism? Compounds having same molecular formula, but these compounds have different functional group. One is aldehyde, another one is ketone. Obvious है, अगर अलग अलग functional groups होंगे तो properties भी अलग अलग होंगी। तो इसकी properties से अलग है, molecular formula same है, hence they are called isomer. Which isomer they are? Functional group isomer. 3 isomerism we had done: chain or skeletal, position, and third is functional group. Now the last and the fourth, structural isomerism, and that is metamerism. Metamerism. ये भी एक टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप इसको शो करते हैं। इसमें कैसे होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, बाईवैलेंट कंपाउंड्स होंगे इसमें। जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे ईथर शो करता है, क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन डाइवैलेंट है और उसके दोनों साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। फिर सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन में NH होता है फंक्शनल ग्रुप और दोनों साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। फिर कीटोन, कीटोन में C डबल बॉन्ड O बीच में होता है, फिर दोनों साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। इनको बोलते हैं बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। बोथ द साइड इफ फंक्शनल ग्रुप्स डिफर, alkyl groups differ, then isomers are called metamer, and phenomena is known as metamerism. So what is metamerism? Compounds having same molecular formula but in bivalent functional group, alkyl groups both the side different.
कैसे डेफिनेशन लिखेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, molecular formula same, but two sides from alkyl groups differ. Alkyl groups differ. They are called metamer. Phenomena is known as metamerism. कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं? ईथर, सेकेंडरी अमाइन, कीटोन, इवन एस्टर आल्सो शोज। एस्टर में भी दोनों तरफ अलग अलग अल्काइल ग्रुप प्लेस कर सकते हैं। एस्टर्स, ईथर, secondary amines and ketones, they show metamerism. Phenomena is called metamerism and the compounds obtained are known as metamers. देखिए एग्जाम्पल, we have this compound CH3, CH2, CH2 and CH3। ईथर है ये, O है फंक्शनल ग्रुप इसलिए ईथर है। इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? कोई भी एक साइड चेन सेलेक्ट किया, 1 और 2, इसका नाम आएगा इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन। क्या नाम होगा? इथॉक्सी इथेन। दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इथॉक्सी इथेन, द फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। अब आपको बोलेगा इसका मेटामर लिख के बताओ। मेटामर में क्या करना है हमको? दोनों साइड अभी कौन से अल्काइल ग्रुप हैं? ईथर, इथाइल है, यहाँ भी इथाइल है ना। हमको सिर्फ इनमें नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंज करना है। कैसे करेंगे? एक CH2 को यहाँ से उठा के इधर कर दो या यहाँ से उठा के इधर कर दो, ऐसा बना सकते हैं अपन। CH3O, CH2, CH2, CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, जितने कार्बन एटम से उतने ही कार्बन एटम। सिर्फ ऑक्सीजन के दोनों साइड जो अल्काइल ग्रुप है, दे डिफर। हियर बोथ इथाइल ग्रुप्स आर देयर, हियर one is ethyl, one is propyl. Compound will be different. If you give the name now, then it will be 1-methoxypropane. 1-methoxypropane. वहां था इथॉक्सी थे और दूसरा कंपाउंड बना 1-methoxypropane. Compound differ means properties differ. They are called isomer. Phenomena is called metamerism. ये दोनों क्या कहलाएंगे? मेटामर्स कहलाएंगे। जैसे कीटोन है हमारे पास, सेकंड एग्जांपल, पेंटेन 2 ऑन और बोलेगा पेंटेन 3 ऑन। कौन से टाइप के आइसोमर्स हैं ये? पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स दे आर? तो दे आर मेटामर्स। कैसे पता लगेगा मेटामर है? स्ट्रक्चर बनाइए, पेंटेन 2 ऑन, 1 2 3 4 और ये 5। 2 ऑन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, CH3, CH2, 2 and this 3. This is pentane 2 on. What is the structure of pentane 3 on? 2, 3, 4 और 5 कार्बन, 3 पे डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे CH3, CH2, यहाँ पे भी CH2 और CH3। What type of isomers they are? Metamers. Around C double bond हो, here 2 ethyl groups are there. Around C double bond हो, here one methyl and one propyl group is there. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। टोटल 5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड इज C5H10O। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कार्बन स्केलेटन, सेम फंक्शनल ग्रुप, ओनली अल्काइल ग्रुप टू द functional group differ. Here both side ethyl, here one is ethyl and one is propyl. Such isomers are called metamers. Phenomena is known as metamerism. Clear? और कौन शो करता है? सेकेंडरी अमाइन, जिसमें बीच में NH होगा। दोनों साइड अल्काइल ग्रुप डिफर करेंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। This type of isomers are known as metamers. Phenomena is called metamerism. So 4 types of structural isomerism: chain or position, functional group और मेटामर्स। एक और होता है टॉटोमेरिज्म, लेकिन वो सिलेबस में से निकाल दिया है, मतलब परमानेंट डिलीट है, इसी साल डिलीट किया, ऐसा नहीं है। टॉटोमेरिज्म ओल्ड सिलेबस में आता था, न्यू सिलेबस में नहीं है। दूसरे टाइप की जो आइसोमेरिज्म है वो है
स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और वो हम डिस्कस करेंगे सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में। अभी डेफिनेशन पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं, विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, बट ओनली द अरेंजमेंट और जो ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े होते हैं, their spatial arrangement, 3-dimensional arrangement will be different. So no need to discuss over here. We'll discuss it in next class, next chapter, that is stereoisomerism, and it consists of two, that is geometrical and optical. और एक और होता है conformational isomerism. तो दो हम 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे, conformational और geometrical, दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। These are different type of isomers. अब आता है नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और बहुत बार पूछा गया रिएक्शन मैकेनिज्म, अभी भी नहीं आगे भी बहुत बार काम आता है आपको, ठीक है। फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें बहुत सारे टर्म्स हम पढ़ेंगे। बेसिक है, वी कैन से लाइक दैट, जैसे कार्बोकेटायन, कार्बन आयन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। आप 12th स्टैंडर्ड में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो रीजंस हैं वो सब इन पे बेस्ड है। तो हमें पता ही नहीं होगा कि कार्बोकेटायन क्या है, तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन why the boiling point of this particular compound is more than that, why this is more basic than this, why this is more acidic than that compound. Arrange these compounds in acidic order or basic order. For that we should know these terms and conditions. So basic है, ये बहुत important है, 12th स्टैंडर्ड इसी से भरा पड़ा है, इसलिए बहुत ढंग से समझ के और आपको काम करना है। अब क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें दो तीन चीजें वर्ड हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट होता है सबस्ट्रेट, दूसरा होता है रिएजेंट, दोनों मिलके बनाते हैं इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट ब्रेक डाउन होके मेन प्रोडक्ट्स बनाएंगे और बाय प्रोडक्ट्स बनाएंगे। दिस इज रिएक्शन मैकेनिज्म। The way in which the reaction proceed, we can say like that. One is called substrate, other one is called reagent. Now what is the difference between substrate and reagent? Substrate is one which provides carbon for the formation of new bond or for the breaking of bond. जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑब्वियस है कार्बन होगा ही। तो सबस्ट्रेट इज द कंपाउंड इन विच we have to focus on the carbon to which the bond will break or the new bond will form. And reagent is called attacking reagent, the one which attach to the substrate. दोनों मिलके पहले इंटरमीडिएट बनाते हैं, that intermediate break down into main products and the byproducts. This is called the reaction mechanism. See one example. Suppose we have ethene. We are done in 10th standard. Okay. When hydrogen is added on it, or we can say, yeah, hydrogen added on it, this is called substrate because it will provide carbon to the reaction. In this we have carbon atom, that's why it is called substrate. और जो दूसरा है हाइड्रोजन, उसको हम क्या बोलेंगे, reagent. It will attack on it. पहले इंटरमीडिएट बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बनता है, और फिर इसमें से प्रोडक्ट बन जाता है CH3 और CH3 like this. ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, that we'll discuss later on. What I mean to say here, what is substrate, what is reagent, what do you mean by intermediate, products and the byproducts. अब इन दोनों में से दोनों ही reactant है, but one is called substrate because it provide carbon, other one is called reagent. They two combine to give intermediate. This intermediate
further react and convert it into products. Always byproducts are formed. It's not necessary. Product के साथ byproduct हो सकता है. Not all reactions have byproducts. Clear? कभी कभी कैसा होता है कि दोनों रिएक्टेंट में कार्बन होते हैं, इसमें भी कार्बन होगा, इसमें भी कार्बन होगा. फिर डिसाइड कैसे करोगे विच इज सबस्ट्रेट एंड विच इज रिएजेंट? तो जिसके कार्बन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड, दैट कार्बन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट. जैसे जैसे आप रिएक्शंस पढ़ोगे, यू विल मूव ऑन फॉरवर्ड, you come to know how to identify the substrate. Just you have to remember at this time that there are 4 things you have to keep in mind while writing any reaction, and that is substrate, reagent, intermediates, products, and the byproducts. Clear? Now, how these substrate, what are substrate, what are reagent, that we'll discuss. That is fission of covalent bond. Mechanism क्या होता है? ये जो रिएक्शंस हो रही है इनकी स्पीड क्या है, काइनेटिकली हाउ दे प्रोसीड, फास्ट और स्लो. फिर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हाउ दे आर स्टेबल, स्टेबल और अनस्टेबल. फिर एनर्जेटिक फैक्टर, व्हाइल द बॉन्ड ब्रेक्स और न्यू बॉन्ड फॉर्म, व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम. क्योंकि जब भी बॉन्ड तोड़ना होता है तो एनर्जी देना होता है, और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है. कोई भी रिएक्शन में ऐसा ही होता है. ओल्ड बॉन्ड broken, new bond formed. That is the basis of any reaction. ना, तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड, जब नया बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड. हाउ दिस एनर्जेटिक फैक्टर वर्क हियर, अगर वो सब हम देखेंगे टुगेदर, देन इट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म. मैकेनिज्म विल डिस्कस लेटर ऑन. नाउ fission of covalent bond, 4 terms we'll discuss here. Fission मतलब होता है breaking of covalent bond. Fission of, very important, अब ध्यान से पढ़िएगा. Covalent bond. Covalent bond आपको पता है, it is formed by sharing of electrons. One electron shared by 2 atoms, and the bond is formed. That is known as covalent bond. अब हम पढ़ रहे हैं breaking of covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरीकों से ब्रेक हो सकता है. पहला जो ब्रेकिंग है वो है हेट्रोलाइटिक फिशन. हेट्रोलाइटिक फिशन, फिशन मतलब ब्रेकिंग. हेट्रोलाइटिक ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. अगर ऐसे ब्रेक होगा तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे वो हमको पढ़ना है. हेट्रोलाइटिक फिशन मतलब ऐसा होता है जैसे हमारे पास है CH3Br and there is a bond between them. कोवेलेंट बॉन्ड है. अब ऐसा ब्रेक हो बॉन्ड कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर हुए हैं, एक Br का है, एक किस कार्बन का. तो ब्रेकिंग इज डन इन सच अ वे दैट Br टेक्स अप द इलेक्ट्रॉन्स. एरो से शो करना है कि Br ले गया इलेक्ट्रॉन. तो जो मिथाइल जो बनेगा CH3 वो विदाउट इलेक्ट्रॉन होगा तो इट वुड बी पॉजिटिव, एंड एक्स्ट्रा पेयर ब्रोमीन ले जाएगा. This is called, this type of breaking of bond is known as heterolytic fission of bond. What do you mean by heterolytic fission? देखिए, जब भी ये CH3Br है, कोई 2 एटम है, A और B है suppose. When they form covalent bond, they share their electrons. एक इलेक्ट्रॉन A का, एक इलेक्ट्रॉन B का, they will share and covalent bond is formed. While breaking, both the electron taken up by B, because B is more electronegative. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन लेके खिसकता है. Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, Br take up both the electrons. As it takes up extra electron, it gets negative charge, and carbon gets positive charge. हेट्रोलाइटिक फिशन से जो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बना है इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन. क्या कहलाता है? कार्बोकैटायन. और क्या बोलते हैं? कार्बोनियम आयन. कार्बोकैटायन और कार्बोनियम ion. Very important. What is carbocation? It has sextet of electron. मतलब around carbon there are 6 electrons. See, it is electron deficient. CH3 plus है, उसका इलेक्ट्रॉन बेचारे का तो ले गया Br, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस. 6 electrons around carbon, 2, 4 and 6.
8 होना चाहिए, लुइस ने बोला था if there are 8 electron around any atom means it is a stable, its octet is completed. But here how many? Only 6. This is called carbocation or carbonium ion. There are 6 electrons around carbon atom. इसमें जो कार्बन होता है, कार्बोकेटायन में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. What is hybrid state of carbocation? Sorry, hybrid state of carbon and carbocation, it is sp2. And you know, whenever there is sp2 hybrid state, the shape is trigonal planar. तो जो 3 बॉन्ड जो बनेंगे हाइड्रोजन के साथ वो प्लेन में होंगे इस तरीके से, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे. और जो p ऑर्बिटल है, वेकेंट p ऑर्बिटल, वो ऐसे परपेंडिकुलर होगा प्लेन. दिस इज वेकेंट p ऑर्बिटल. इसमें प्लस चार्ज होगा. ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन. ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लानर स्ट्रक्चर होता है. 120 डिग्री का एंगल. Carbocation, sp2 hybridized, and shape is trigonal planar, and the vacant p orbital is lying perpendicular to the plane of the molecule. Carbocation, deficit of carbon, इसको लुइस एसिड भी बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए इट इज कॉल्ड लुइस एसिड. अब 3 टाइप के कार्बोकेटायंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. कार्बोकेटायन कितने टाइप के? 3 टाइप के. 1 डिग्री कार्बोकेटायन किसको बोलेंगे? CH3CH2 प्लस. दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन. प्राइमरी और 1 डिग्री. व्हाई दिस इज कॉल्ड प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बोकेटायन? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है that is attached to one carbon atom. जे कार्बन ऊपर प्लस चार्ज है, ये बीजा एक कार्बन थी कनेक्टेड है. इट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकेटायन. इसको इथाइल कार्बोकेटायन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इथाइल कार्बोकेटायन. अच्छा, दूसरा होता है ऐसा, CH3 प्लस. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकेटायन. सेकेंडरी 2 डिग्री. और नाम है इसका आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन. आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन. क्यों ऐसा बोलते हैं? क्यों ये सेकेंडरी है? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अटैच्ड है, दैट कार्बन इज कनेक्टेड टू 2 अदर कार्बन एटम. दिस इज नोन एज सेकेंडरी कार्बोकेटायन. फिर तीसरा होता है टर्शियरी कार्बोकेटायन. If carbon bearing positive charge is connected to 3 other carbon atom, it is called tertiary कार्बोकेटायन. 3 डिग्री भी बोलते हैं. इसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटायन. 4 कार्बन है ना, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन. So if carbon having positive charge is connected to one more carbon, it is primary. जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज कनेक्टेड टू 2 अदर कार्बन, इट इज सेकेंडरी. एंड टू द कार्बन 3 कार्बन अटैच्ड, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसमें 3 कार्बन अटैच हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी और 3 डिग्री कार्बोकेटायन. सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोकेटायन. ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट. और ये क्या है वर्ड, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी, प्राइमरी मोर स्टेबल देन मिथाइल. क्या रीजन हम पढ़ने वाले हैं? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट. आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट. और दूसरा इफेक्ट कौन सा? हाइपर कॉन्जुगेशन. वर्ड आप बार बार सुनोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन. ये 2 रीजन है व्हाई दिस टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी. सो व्हाइल
covalent bond is break such a way that shared electron pair move towards more electronegative atom. It get negative charge, carbon will bear positive charge. This type of breaking of bond is called heterolytic fission. जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन. कितने टाइप के हुए? 3. प्राइमरी, सेकेंडरी, tertiary, and this methyl. Most stable is tertiary, after that secondary, then primary, and then methyl carbonation. Clear? Next, एक और तरीके से हेटेरोलाइटिक फिशन हो सकता है. सपोज ऐसा एटम अटैच्ड हो कार्बन से जो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो. Br अटैच किया था, वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, है ना. अब ऐसा एटम अटैच किया जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस तरीके से Z और यहाँ पे CH3. कंडीशन क्या है? Z is less electronegative than carbon. हाइड्रोजन है जैसे, या कोई और कार्बन जुड़ा हुआ है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसा. इसमें अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब की बार इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन ले जाएगा, Z बन जाएगा प्लस, कार्बन के पास आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और माइनस चार्ज. इसको बोलते हैं कार्ब एनायन. क्या बोलते हैं? कार्ब एनायन, कार्बन आयन, कार्बन आयन और कार्बन आयन. इसमें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्टेट पूरा है इसमें, प्लस नेगेटिव चार्ज है. दिस इज कॉल्ड कार्बन आयन. इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन and it is Lewis base because it can donate its electron pair. जो दिख रहा है वो डोनेट कर सकता है. अब की बार कार्बन क्यों लेके आया इलेक्ट्रॉन्स? In comparison to Z, carbon is more electronegative, so electron pair shift towards carbon. Okay, this is called carbon ion. इसमें कार्बन का जो हाइब्रिड स्टेट होता है that is sp3, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका. 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल हाइब्रिड स्टेट इज sp3. कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ये भी 3 टाइप के होते हैं. मिथाइल कार्बन आयन, फिर प्राइमरी कार्बन आयन CH3 CH2, देन सेकेंडरी कार्बन आयन CH3 CH, यहाँ पे CH3, और टर्शरी कार्बन आयन. आई एम रबिंग दिस. टर्शरी कार्बन आयन, दैट इज this one. How can we identify primary, secondary, tertiary? अभी बताया था. If carbon having negative charge attached to one more carbon, it is called primary or 1D. And the carbon having negative charge attached to 2 other carbon, it is called secondary. Carbon having negative charge attached to 3 other carbon, it is called tertiary. और इसको बोलते हैं methyl carbon ion. कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन इट इज कॉल्ड कार्बन आयन. एंड इफ इट हैज पॉजिटिव चार्ज देन इट इज नोन एज कार्बोकैटायन या फिर कार्बोनियम आयन. इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे होता है. दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, देन दिस, एंड दैट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन. हम एक्सप्लेन करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, उन सबसे. Why primary carbon ion is more stable than secondary? Secondary is more stable than tertiary. इसको tertiary butyl carbocation भी बोलते हैं. Tertiary butyl carbocation. Sorry, carbon ion. This is called isopropyl carbon ion. This is called ethyl carbon ion, and this is known as methyl carbon ion. So 3 types of carbon ions are there: primary, secondary and tertiary. ये हुआ heterolytic fission. अब एक और तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, सेकंड वे, उसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक फिशन. क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक फिशन ऑफ बॉन्ड. होमोलाइटिक फिशन में क्या होता है? दो जो एटम्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, दे टेक अप 1 इलेक्ट्रॉन, खुद के इलेक्ट्रॉन्स लेके सेपरेट हो जाते हैं.
They are called, this type of breaking of bond is known as homolytic fission. जैसे सिंगल बॉन्ड है ए और ए के बीच में, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमेशा होमोलाइटिक फिशन या तो सनलाइट या हीट दो तो होता है। बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, यहां से ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। दिस टाइप ऑफ breaking of bond is known as homolytic fission. So what is homolytic fission? The breaking of bond such that both the atoms takes up their electrons and separated. ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कमी थी एक इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए तो इसके साथ शेयर कर रहे थे। अभी खुद ही का इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये जो बना ये क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल। क्या कहलाता है, free radicals. What do you mean by free radical? The species obtained by homolytic fission, electron deficient, it has unshared electron pair. एक unshared electron pair अगर इसके पास है तो हम उसको क्या बोलेंगे, homolytic fission, and the species obtained is known as free radical. How the stability order of free radical is there, that we'll discuss in next class. Okay, beta, bye.